how to determine hybridization in different molecular compound یا کسی بھی کمپاؤنڈ میں یا مالیکیولز میں ہائبریڈائزیشن کس طرح سے معلوم ہوتا ہے. تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. ہم آپ کو یہاں پر اسٹیرک نمبر سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن ہم اسٹیرک نمبر وہ ہے کہ لون پیئر الیکٹران پلس بانڈ پیئر آف الیکٹران, تو اس سے اگر ویلیو 4 آتی ہے تو اس کو ہم sp3 ہائبریڈائزیشن کہتے ہیں. اگر ویلیو 3 آتا ہے تو sp ہائبریڈائزیشن, اگر ویلیو 2 آتا ہے تو sp ہائبریڈائزیشن, اور اگر ویلیو 3 آتا ہے تو sp2 ہائبریڈائزیشن. لیکن z ویلیو سے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. z ویلیو برابر ہے 1/2 ویلنس شیل الیکٹران آن سینٹر ایٹم. اب ویلنس شیل الیکٹران آن سینٹر ایٹم پلس چارج پلس ویلیو فار نیگیٹیولی چارج, اور اس طرح سے مائنس ویلیو یہ پازیٹیو ویلیو فار نیگیٹیولی چارج, نیگیٹیو ویلیو فار پازیٹیولی چارج, پلس نمبر آف مانوویلنٹ. دیکھیں مانوویلنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ہائیڈروجن اور ہیلوجن یعنی فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین, یہ والا. تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں Z کی ویلیو ایکسپلین کرتے ہیں. اگر Z کی ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے, اگر Z کی ویلیو یہاں ایکسپلین کرتے ہیں, اگر Z کی ویلیو آ جاتی ہے 4 تو سمجھو کہ یہ آپ کے پاس sp3 ہائبریڈائزیشن ہے. اگر Z کی ویلیو آپ کے پاس 2 آتی ہے تو یہ sp2 ہائبریڈائزیشن ہے. اگر Z کی ویلیو آپ کے پاس 3 آتی ہے تو sp2 ہائبریڈائزیشن, اگر 2 آتی ہے تو sp ہائبریڈائزیشن, اگر Z کی ویلیو 5 آ جاتی ہے تو یہ sp3d ہائبریڈائزیشن, اور Z کی ویلیو اگر 6 آتا ہے تو sp3d2 ہائبریڈائزیشن. یہ آپ کے پاس ٹیٹراہیڈرل, یہاں پر ٹرائیگونل پلینر, اور یہاں پر لینئر شیپ, اور یہ ٹرائیگونل بایا پیرامائڈل, اور یہ آکٹاہیڈرل شیپ ہوتا ہے. اینی ہاؤ ہم جاتے ہیں اور ہم ویلیو ایکسپلین کرتے ہیں. Z ویلیو فار میتین, تو یہ آپ کے پاس ہے 1/2. اس کے میتین کے جو سینٹر ایٹم ہے وہ کاربن ہے, اور کاربن بلانگ کرتا ہے گروپ نمبر 4 سے. تو جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے اگر وہ بلانگ کرتا ہے گروپ نمبر 4 سے تو اس کے ویلنس شیل الیکٹران میں بھی 4 ہوں گے, یعنی آؤٹر موسٹ میں الیکٹران 4 ہوں گے, تو یہ 4 ہے. اب دیکھیں اس میں ساتھ مانوویلنٹ ہائیڈروجن ہے تو مانوویلنٹ بھی 4 ہے, تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے 8, اور 8 کو آپ 2 پہ ڈیوائڈ کر دو تو اس سے آتا ہے 4. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کاربن ہے سینٹر پہ, میں یہ والا کاربن sp3 ہائبریڈائز ہے. اگر ہم اس کی ویلیو اس طرح سے نکال دیں کہ کاربوکیٹائن, میتائل کاربوکیٹائن, یہ والا اس طرح سے لگائیں پلس چارج, تو 1/2, اور یہ جو کاربن ہے یہ سینٹر میں ہے تو یہاں پر پلس
ये आपके पास 4 है, क्योंकि कार्बन जो है वैलेंशियल है, वैलेंशियल कार्बन की जो सेंटर वाला एटम है कार्बन, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो आपके पास जो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज आने की वजह से इससे आपने एक माइनस करना है, पॉजिटिव वैल्यू फॉर नेगेटिवली चार्ज, और देखें नेगेटिव वैल्यू फॉर पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो आपने एक को माइनस करना है, एक माइनस करना है। और मोनोवेलेंट कितने हैं? मोनोवेलेंट 3 है, तो आपके पास ये 3, इससे भी 3 आता है, इससे भी 3, तो इससे आता है 6 डिवाइडेड बाय 2, इससे आता है 3। तो ये देखे इस वाले कार्बन में, ये वाला देखे इस वाले कार्बन में जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपके पास ये Z की वैल्यू CH3 नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 2, उसी तरह से कार्बन है, कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर वाला एटम है, तो ये 4। अब देखिए चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज आ गया है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से एक आपने प्लस करना है, तो एक प्लस हो गया, और ये 5 और मोनोवेलेंट जो है वो 3 हो गए, तो टोटल आपके पास 8 हो गए, और 8 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो इससे वापस आता है 4। तो यहां आपके पास ये देखे जो कार्बन एनाइन है ये वाला, तो इस कार्बन में आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह से अगर आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो देखिए इसमें जो आपके पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम देखे आपके पास ग्रुप नंबर 3 से है, तो आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 होते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। इसके मोनोवेलेंट कितने हैं? मोनोवेलेंट जो है वो आपके पास 3 है, 3 क्लोरीन है, तो इससे आता है 6, और 6 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो इससे आता है 3। तो एल्यूमिनियम ये क्लोराइड जो है, इस एल्यूमिनियम में आपके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से अगर आपके पास है कार्बन डाई ऑक्साइड, तो Z की वैल्यू फॉर कार्बन डाई ऑक्साइड, तो देखिए कार्बन डाई ऑक्साइड में आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें कार्बन सेंटर पे है, तो ये 4। इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई मोनोवेलेंट, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 4 डिवाइडेड बाय 2, इससे आता है 2। और अगर 2 की वैल्यू आ जाए तो ये याद रखिए यहां पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो कार्बन के दोनों साइड पे ऑक्सीजन है, और इस वाले कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखिए अगर आपके पास Z की वैल्यू, ये देखिए आपके पास नाइट्रेट है, नाइट्रेट -1 नाइट्रेट है, तो अब देखिए आपके पास है Z की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, और नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 के साथ, और ये याद रखिए इस पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसकी वैल्यू जो है इसमें प्लस आपने 1 ऐड करना है, तो टोटल 6 डिवाइडेड बाय 2, इससे 3 आता है। तो इस नाइट्रोजन में, नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह से Z वैल्यू जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, फास्फोरस जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जो है वो मोनोवेलेंट है, और क्लोरीन तादाद में भी 5 है, तो ये 10 होता है, और 10 को आप 2 पे डिवाइड कर दो, तो इससे आता है 5। अब जब 5 आता है तो ये याद रखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, ये देखिए ट्राइगोनल
ट्राइगोनल बाया पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल बाया पिरामिडल है। 120 एंगल है और 90 है, 120 और 90, यहां पर 90 बन रहा है, 90, और यहां पर 120 एंगल बन रहा है। अब देखिए आखिर में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं जेड वैल्यू फॉर सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो देखिए ये आपके पास है हाफ, सल्फर जो है वो बिलोंग्स करता है ग्रुप नंबर 6 के साथ, और हेलोजन ये मोनोवेलेंट है, ये भी 6 इन नंबर है। तो आपके पास 12 और 12 को 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे वैल्यू आती है 6। लिहाजा सल्फर में जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, और यहां पर एंगल जो है सारे एंगल वो 90 के बराबर है। और ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से बनता है कि सल्फर यहां पर फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर फ्लोरीन। तो ये देखिए ये आपके पास इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, और यहां 90 एंगल है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल कोर्स एडेक्स को आप ज़रूर चेक कर ले, और इंशाल्लाह वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।